محترم سامعین کرام و حاضرین جمعہ، تمام قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، یکتائی، شہنشاہی، بادشاہی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے ہیں، جو تمام جہانوں کا خالق و رازق اور مالک ہے۔ بعدہ انگنت اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں تمام کے تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ محترم سامعین، جیسا کہ ہم تمام لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ رمضان کی آمد ہونے والی ہے، چند دنوں کے بعد انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہمارے اوپر رمضان کا مہینہ سایہ فگن ہو جائے گا، جس مہینے کا اللہ والوں کا انتظار ہوتا ہے، جس مہینے کے لیے اسلاف دعا کیا کرتے تھے، جس مہینے کی حصول یابی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسلاف سوال کیا کرتے تھے، اور 6 مہینہ تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کرتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ نصیب عطا فرما، ہمیں اتنی زندگی دے کہ ہمارے زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آ جائے۔ تو صحابہ کرام اور اسلاف اس چیز کے لیے دعا کیا کرتے تھے، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ یہ رمضان المبارک کا مہینہ کس قدر عظیم اور اہمیت اور فضیلت والا مہینہ ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے جو اپنے اندر بہت ساری رحمتوں کو، بہت ساری برکتوں کو اور بہت ساری مغفرتوں کو اپنے اندر سموئے ہوئے ہوتا ہے۔ یوں جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص انعام و اکرام ہوتا ہے اپنے بندوں پر، خاص طرح کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مغفرت ہوا کرتی ہے اپنے بندوں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص طرح کا انعام ہوتا ہے اپنے بندوں پر، اسی لیے اسلاف دعا کیا کرتے تھے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے مہینہ تک پہنچائے، ہماری زندگی اتنی طویل کرے کہ ہمارے زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ نصیب ہو جائے۔ یقین جانیے یہ رمضان کا مہینہ مل جانا یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ وہ انسان جو اس مہینے کو پا لیتا ہے وہ اس کی فضیلتوں کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اس مہینے کو یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطابق زندگی گزارنے کے بعد وہ انسان رمضان المبارک کے مہینوں کے فضیلتوں کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مقصد ہے رمضان المبارک کے مہینہ کا سایہ فگن کرنے کا، اس مقصد کو پا لیتا ہے۔ اور وہ مقصد کیا ہے؟ وہ مقصد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والو، ہم نے تمہارے اوپر روزے کو فرض کیا ہے جس طرح کہ تم سے پہلی امتوں پر، تم سے پہلے لوگوں پر روزے کو فرض قرار کیا تھا، روزے کو فرض کیا تھا۔ کیوں؟ لعلکم تتقون۔ اللہ تبارک و تعالی حکمت بیان کرتے ہوئے بیان کر رہا ہے، فلسفہ ذکر کرتے ہوئے بیان کرتا ہے کہ کیا مقصد تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقصد بیان کیا وہ یہی ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے لگو، تاکہ تیرے دل کے اندر تقوی پیوست ہو جائے، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر ڈر کر کے زندگی گزارنے لگو، تاکہ تمہارا تعلق رب العالمین سے مضبوط ہو جائے، تاکہ تم عبادت کا عادی ہو جاؤ،
ताकि तेरे अंदर इबादत के अंदर तुम्हें लज्जत मिलने लगे, सुकून मिलने लगे, तुम इस तरह का आदी बन जाओ। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हिकमत बयान किया और मकसद बयान किया कि लअल्लकुम तत्तकून, कि ताकि तुम तकवा वाला हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने एक मीज़ान कायम किया, एक मियार कायम कर दिया, एक लेवल को अल्लाह तबारक व तआला ने कायम कर दिया कि जिनको रमजानुल मुबारक का महीना नसीब हो जाए, जिनकी जिंदगी के अंदर अल्लाह तबारक व तआला रमजानुल मुबारक का महीना आता करे, उनको जांचना हो, उनको परखना हो, उनको देखना हो, उनको नतीजा चाहना, अगर नतीजा का तलबगार हो, रिजल्ट का तलबगार हो, तो वो ये देखे कि उनकी जिंदगी के अंदर किस तरह की तब्दीली आई है, उसकी जिंदगी के अंदर कैसी तब्दीली और कैसा इंकलाब आया है। अगर उसकी जिंदगी के अंदर तगय्युर हुआ हो, अगर उसकी जिंदगी के अंदर तबद्दुल हुआ हो, इस रमजानुल मुबारक के महीने के गुजार लेने के बाद उनके जिंदगी के अंदर एक इंकलाब पैदा हो गया हो, तो वो रमजानुल मुबारक के फजीलतों का हकदार हो जाता है, रमजानुल मुबारक की फजीलतों का वो मुस्तहिक हो जाता है। लअल्लकुम तत्तकून कह करके अल्लाह तबारक व तआला ने एक मीज़ान कायम किया। रमजान की आमद है, रमजान आने वाला है, हमें और आपको चाहिए कि हम तैयार हो जाएं, हम मुस्तइद हो जाएं, हम अपना शेड्यूल बनाएं, हम अपना रूटीन बनाएं, हम अपना निज़ामुल औक़ात को मुरत्तब करें कि इस महीने में, इस रमजान में इंशाअल्लाह हमारी जिंदगी के अंदर तब्दीली आएगी। इस रमजानुल मुबारक के महीने में इंशाअल्लाह हम इबादत के आदी हो जाएंगे। इस रमजानुल मुबारक के महीने में इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन का जो मकसद है, उस मकसद को पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो इंसान को एक खाका बनाना चाहिए और अपने ज़हन के अंदर इस चीज को रखना चाहिए कि रमजानुल मुबारक के महीने के ताल्लुक से प्लानिंग बनाए कि दिगर रमजान के महीने जो गुजर गए, जैसे गुजर गए, लेकिन इंशाअल्लाह इस रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर सबसे पहली चीज ये करेंगे कि हम अपनी जिंदगी के अंदर तब्दीली पैदा करेंगे और अपनी नीयत के अंदर इखलास पैदा करेंगे, नीयत के अंदर खुलूस पैदा करेंगे। जब नीयत के अंदर खुलूस पैदा होगा, जब नीयत के अंदर इखलास पैदा होगा, रब्बुल आलमीन की मदद होगी, रब्बुल आलमीन की ताईद होगी, अल्लाह तबारक व तआला सपोर्ट करेगा। तो जरूरत इस बात की है कि रमजान की आमद है, रमजान के आने से पहले अपनी नीयत के अंदर इखलास पैदा कीजिए, अपने नीयत के अंदर खुलूस पैदा कीजिए कि एक अल्लाह तबारक व तआला को हम राज़ी करेंगे, एक अल्लाह तबारक व तआला को हम खुश करेंगे, एक अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी को हासिल करेंगे। हम अपने गुनाहों की माफी तलाफी कराएंगे, हम अपने गुनाहों को, जो भी गुनाह हुए हैं, उन गुनाहों से रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ करेंगे और अल्लाह तबारक व तआला से माफी तलाफी करवा लेंगे। यकीनन ये रमजानुल मुबारक का महीना ऐसा महीना है कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों को माफ करता है। जब एक बंदा अल्लाह तबारक व तआला को पुकारता है, अल्लाह तबारक व तआला कहता है उजीबु दअवत दाअ इज़ा दआनी फलयस्तजीबू ली। जब कोई दुआ करने वाला दुआ करता है, जब कोई मुनादी निदा लगाता है, जब कोई अल्लाह तबारक व तआला को पुकारता है, तो अल्लाह कहता है फलयस्तजीबू ली, तो मैं उसकी दुआ को कबूल करता हूँ। चाहे वो अपने गुनाह के बोझ को ले आए, अल्लाह तबारक व तआला के दरबार पर ले आए और अल्लाह तबारक व तआला से रो करके, गिड़गिड़ा करके, रो करके अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करे कि अल्लाह हमसे फला गुनाह हो गया था, अल्लाह फला तारीख को मैंने फला के ऊपर जुल्म किया था, अल्लाह फला तारीख को हमसे ये गुनाह हुआ, फला जगह ये गुनाह हुआ, अल्लाह तू माफ करने वाला है, अल्लाह तू तव्वाब है, तू तौबा कबूल फरमाता है, अल्लाह मैं तौबा करता हूँ, अल्लाह मैं गुनाहों की माफी तलाफी तुझसे चाहता हूँ, अल्लाह तू मेरे गुनाह को माफ कर दे। अल्लाह अकबर। जब बंदा दुआ करता है, अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआ कबूल करता है। तो अपने ज़हन के अंदर ये खाका बना लीजिए कि इस रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर जब हम दाखिल होंगे, हम अल्लाह तबारक व तआला से भरपूर दुआएं करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेंगे, क्योंकि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अफ्तारी के वक्त रमजानुल मुबारक के महीने में बहुत सारे
लोगों को जहन्नम से आजाद करता है। यानी एक इंसान जब जहन्नम जैसे अमाल करने लगता है और उनका लिस्ट में नाम आ जाता है जहन्नमियों में, तो अल्लाह तबारक व तआला जहन्नमियों की लिस्ट से उनको निकाल देता है और जन्नती की लिस्ट की तरफ अल्लाह तबारक व तआला उनका नाम कर देता है। तो ये अगर कोई महीना है तो रमजान का महीना है। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का इरशाद भी है कि अफ्तारी के वक्त अल्लाह तबारक व तआला बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे अफराद को जहन्नम से आजाद करता है। हम अब अपने जहन के अंदर ये खाका बनाए कि अफ्तार के वक्त हम ज्यादा से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करेंगे मेरे भाइयों। लेकिन रमजानुल मुबारक का महीना अल्लाह तबारक व तआला हमारे ऊपर एक ऑफर की शक्ल में साया फिगन करता है। और याद रखिए कि ऑफर ज्यादा दिन तक नहीं रहा करता। हमारी जिंदगी के अंदर भी बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, कायनात के अंदर भी बहुत सारे ऑफर्स को हम देखते हैं, चाहे वो रिचार्ज के ताल्लुक से हो, चाहे वो गाड़ियों के ताल्लुक से हो, या दिगर सामान के ताल्लुक से हो, दिगर अशिया के ताल्लुक से हो। ऑफर ज्यादा दिन तक नहीं रहता है, वो चंद मुद्दतों तक होता है, उनका लिमिटेशन होता है, वो चंद दिनों तक महदूद होता है, चंद मुद्दतों तक महदूद होता है, वो लिमिटेड होता है। इसी एतबार से अल्लाह तबारक व तआला अपने मोमिनीन बंदों पर, अपने सालिहीन बंदों पर, अपने बंदों पर अल्लाह तबारक व तआला इस रमजानुल मुबारक के महीने को ऑफर की शक्ल में साया फिगन करता है। जो इंसान इसकी फजीलत को समझता है, जो इंसान इसकी अहमियत को समझता है, उनके फजीलतों का वो मुस्तहिक हो जाता है। अल्लाह अकबर। और ये रमजानुल मुबारक के महीना ये भी ज्यादा दिन तक हमारे सामने नहीं रहते हैं, हमारी जिंदगी के अंदर नहीं रहते हैं, चंद दिनों के लिए आते हैं, 29 या 30 दिन के लिए आते हैं और फिर हमसे रुखसत हो जाते हैं, हमसे रवाना हो जाते हैं। फिर अब आइंदा साल आने वाला है और कौन जिंदा रहे न रहे, मौत हयात की गारंटी नहीं। आप अपनी सफों पर नजर दौड़ाएं, आप अपनी मस्जिद पर नजर दौड़ाएं। अल्लाह अल्लाह, कितने ऐसे अफराद थे जो हमारी मस्जिद में आकर के नमाज जुमा और नमाज अदा किया करते थे, लेकिन इंसान वो हमारे सामने मौजूद नहीं है। तो किसी को मालूम नहीं है कि एक इंसान की जिंदगी का खात्मा कब हो जाए। जो अल्लाह तबारक व तआला आपको नसीब कर दे उसको गनीमत समझिए, उसको मोहलत समझिए और मोहलत समझ करके, गनीमत समझ करके अल्लाह तबारक व तआला को खुश कर जाइए। और जब ये चीज आप कर लेंगे तो इससे बढ़ करके कोई चीज नहीं कि रब्बुल आलमीन आपसे खुश हो जाए। सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन की जिंदगी, पूरी जिंदगी उन्होंने अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने के लिए गुजार दिए। जिंदगी दुनिया के अंदर अगर दुनिया जाए तो जाए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से कोई कंप्रोमाइज नहीं, अल्लाह तबारक व तआला से कोई रियायत नहीं। तो हम भी अपने धन के अंदर इस चीज को पेवस्त कर लें कि हम अल्लाह तबारक व तआला को खुश करेंगे। लअल्लकुम तत्तकून कह करके अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि ताकि तुम्हारा ताल्लुक रब से मजबूत हो जाए, मुस्तहकम हो जाए, गहरा हो जाए। और अल्लाह तबारक व तआला ने इस और को लिमिट करते हुए कहा अय्याम मादूदात, कि ये रमजान के दिन, रमजान के महीने ये चंद दिनों के लिए आता है, गिने हुए चंद दिन है, शुमार किए हुए चंद दिन है, उसके बाद हमसे रवाना हो जाता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे ऊपर जो ये साया फिगन करता है, अल्लाह तबारक व तआला का खास इनाम है, खास इकराम है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे लिए रमजानुल मुबारक का महीना नसीब अता करता है और साया फिगन करता है। रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का जिस तरह खास इनाम और जिस तरह खुसूसी इनाम और इकराम से अल्लाह हमें नवाजता है, दिगर महीनों में नहीं नवाजता है, दिगर महीनों में वो खुसूसियात नहीं पाई जाती है। रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर जिन खुसूसियात का अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत इस्लामिया में तज़किरा किया, दिगर महीनों में वो खुसूसियात नहीं पाई जाती है। अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान। कायनात के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने बहुत सारी किताबों को नाज़िल किया, उन्हीं किताबों में से एक किताब कुरान है। और कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने दिगर अय्याम में और दिगर महीनों का इंतखाब नहीं किया। इस कुरान जो अफजल और सबसे बेहतर किताब है, उस किताब को नाज़िल करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इसी महीने का इंतखाब किया और कहा शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन, कि रमजान वही महीना है जिस महीने के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को नाज़िल किया। क्यों किया? रमजानुल मुबारक के महीने के अंदर
اللہ نے قرآن کو نازل کیا تو قرآن کے نازل کرنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے مقصد بیان کیا ہدی للناس، تاکہ لوگ اس کے ذریعے سے ہدایت پالے، لوگوں کے زندگی کے اندر تبدیلی آ جائے، ہدی للناس لوگوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدی للناس کہہ کر کے ہمیں یہ پیغام دیا کہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ ایک ہدایت کا بھی ذریعہ ہے، یہ ایک ہدایت کا بھی ذریعہ ہے۔ اللہ نے یہ پیغام دیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا۔ قرآن کیوں نازل کیا؟ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اس کے ذریعے سے ہدایت پا سکے، لوگوں کو رہنمائی مل سکے۔ معلوم چلا کہ قرآن کے نازل کرنے کا مقصد لوگوں کو ہدایت دینا تھا، اور اللہ نے قرآن کو نازل کیا تو شوال میں نہیں کیا، محرم میں نہیں کیا، کس میں کیا؟ رمضان میں کیا۔ تو معلوم چلا قرآن اور رمضان کا ایک گہرا تعلق ہے، قرآن اور رمضان کا ایک گہرا تعلق ہے، اور جہاں قرآن باعث ہدایت ہے وہی رمضان بھی باعث ہدایت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ اسلاف کی زندگی کو دیکھیں گے، ان کی زندگی دیکھیے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جب آ جاتا تھا تو کس قدر وہ قرآن میں لگ جاتے تھے، قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے، قرآن کو سمجھنے میں لگ جاتے، اور قرآن پر اپنی زندگی گزارنے لگتے، اور طرح طرح کے پیغام اخذ کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اوامر و نواہی کی جانکاری حاصل کرتے اور ان کے تحت عمل کیا کرتے تھے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اپنے دور کے عالم ہیں، اللہ اکبر۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ آ جاتا تھا آپ حدیث کا درس دیا کرتے تھے، آپ حدیث کا درس دیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو چھٹی کر دیتے، اپنے طلبہ کو چھٹی کر دیتے کہ اب قرآن کا مہینہ آ گیا ہے، قرآن کا مہینہ آ گیا ہے، اور حدیث کا درس بند کر دیتے اور قرآن کے مطالعہ پر لگ جاتے۔ آپ اسلاف کی زندگی میں دیکھیں گے، کیوں؟ کیونکہ قرآن اور رمضان کا گہرا تعلق ہے۔ میرے بھائیو، جس طرح اسلاف عام دنوں میں قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے، لیکن رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ان کی تلاوت بڑھ جاتی تھی، آج ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھیں، ہم اپنی زندگی کے اندر جھانکیں کہ ہمارا کیا معاملہ ہے، ہمارا کیا رویہ ہے قرآن کے ساتھ، جو قرآن باعث ہدایت ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم نمازی بنیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، لیکن ہم قرآن سے کوسوں دور ہیں، جو ہدایت کا ذریعہ ہے، جو باعث ہدایت ہے، ہم اس کو اپنے سے دور رکھتے ہیں، تو ہمیں ہدایت کہاں سے ملے گی، ہمیں رہنمائی کہاں سے ملے گی؟ جس طرح انسان کو رمضان میں جس طرح تلاوت کرتا ہے، انہیں چاہیے کہ عام دنوں میں بھی قرآن کی تلاوت کرے، عام دنوں میں بھی قرآن سے تعلق رکھے، عام دنوں میں بھی قرآن سے رشتہ رکھے۔ اللہ اکبر، بہت سارے ایسے افراد ہیں کہ رمضان میں صرف قرآن کو کھولتے ہیں، اور بہت ساروں کو رمضان میں بھی توفیق نہیں ملتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کو کیا کہیں گے کہ زندگی کہاں گزاری؟ تو رمضان المبارک سے مہینہ آتا تھا، اس وقت صرف قرآن کو کھولتے تھے۔ بعض لوگ تو اس مہینے میں بھی نہیں کھولتے ہیں جو بابرکت والا مہینہ ہے، جس مہینے میں قرآن کو نازل کیا گیا ہے۔ یہ ذہنی خاکہ بنا لیجئے کہ اس رمضان المبارک سے انشاءاللہ ہم قرآن کی تلاوت شروع کریں گے، اور اپنی زندگی کے شیڈیول میں روز مرہ ہم کی تلاوت کریں گے، اور ہمیشہ قرآن کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے، اور رب کے پیغام کو، رب کی جانکاری کو، شریعت اسلامیہ کو اور شریعت اسلامیہ کے علم کو حاصل کریں گے، اور اس کے تحت عمل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری جہاں پر اس میں رحمتیں رکھی ہے، بہت سارے ثواب اور اجر کی چیزیں رکھی ہے، وہی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر لیلۃ القدر رکھی ہے، شب قدر رکھی ہے، قدر والی رات رکھی ہے۔ اللہ اکبر، جنہیں قدر والی رات نصیب ہو جائے، جو قدر والی رات کو حاصل کر لے، اللہ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جنہیں یہ نصیب ہو جائے، جن کو یہ مل جائے، حقیقی طور پر وہی خوش نصیب ہے، وہ خوش قسمت ہے کہ ان کو لیلۃ القدر مل جائے۔ اپنے ذہن کے اندر یہ ذہنی خاکہ بنا لیجئے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ ہمیں انسان رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کر، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان المبارک کا مہینہ نصیب کر دے اور ہم رمضان میں داخل
दाखिल हो जाए तो हम लैलतुल क़द्र की जुस्तजू करेंगे, हम शब क़द्र की जुस्तजू करेंगे, रातों में जाग जाग कर एक अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करेंगे। लेकिन मेरे भाइयों, आज हम जागते तो हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो खाने पकाने में गुजार देते हैं, बहसो मुबाहसा में गुजार देते हैं, मोबाइल में गुजार देते हैं, इधर उधर टहलने में गुजार देते हैं, इधर उधर घूमने में गुजार देते हैं। नहीं नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं होना चाहिए। कितना बदनसीब है वो इंसान जो इस रात को जागता है लेकिन फजूल चीजों में, लहव लईब में, फजूल चीजों में अपने वक्त को जाय करता है और यूं ही उस रात को गुजार देता है। यानी सिर्फ अपनी नींद को कुर्बान करता है, नींद को छोड़ करके, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत को छोड़ करके सिर्फ नाम के लिए जाग करके अपने वक्त को जाय कर लेता है। कितना बदनसीब है वो इंसान जिनकी जिंदगी के अंदर रमजान मुबारक का महीना आ जाए लेकिन फिर भी वो सो करके गुजार दे, नींद में गुजार दे। अल्लाह अल्लाह, इतने दिनों तक हम सोते हैं, इतने दिनों तक हमें नींद होती है, हम नींद हासिल करते हैं, क्या वो काफी हमारे लिए नहीं? जबकि हम सुबह भी सो सकते हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, कितने ऐसे अफराद हैं जो यूं ही लैलतुल क़द्र की अहमियत को जानते हुए भी छोड़ देते हैं और कोशिश नहीं करते। तो हमारे जहन के अंदर ये खाका होना चाहिए कि इंसान हम लैलतुल क़द्र की जुस्तजू करेंगे, शबे क़द्र की जुस्तजू करेंगे, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी फजीलत बयान की। लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, के 1000 महीनों की इबादत से वो बेहतर है। तो जरूरी इस बात की है, जरूरत इस बात की है कि हम अपने दहन के अंदर ये खाका बनाए। इसी तरह से जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मन साम रमज़ान ईमाना वहतिसाबन गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जिसकी जिंदगी के अंदर रमजानुल मुबारक का महीना आ जाए और वो अल्लाह तबारक व तआला के लिए रोजा रखने लगे, मन सामा, जिसने रोजा रखा रमजान, रमजान के महीने में, ईमानन, ईमान के साथ, इहतिसाबन, और इहतिसाब के साथ, मतलब ये है कि नीयत के अंदर खुलूस पैदा करते हुए, नीयत के अंदर इखलास पैदा करते हुए, एक अल्लाह तबारक व तआला को खुश करने के लिए, इसी तरह से मुकम्मल यकीन के साथ, रमजान के सवाब की उम्मीद के साथ कि अल्लाह तबारक व तआला उन्हें उस चीज का सवाब देगा, उन्हें उस चीज का अज्र देगा, मुकम्मल यकीन के साथ और ईमान के साथ। जब एक इंसान रोजा रखता है तो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये खुशखबरी देता है, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, कि उसके साबिक़ा गुनाह, उसके पिछले गुनाहों को माफ कर दिया जाता है। अल्लाहु अकबर, ये फजीलत है कि पिछले गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला रमजान के रोजे के जरिए से माफ कर देता है। और ये ऐसी इबादत है कि जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि बनी आदम जब भी कोई अमल करता है तो अल्लाह तबारक व तआला का इतना फजल होता है, अल्लाह इतना बड़ा फजल वाला है कि एक नेकी करता है तो अल्लाह उसको 10 से लेकर के 700 गुना तक बढ़ा देता है। यानी एक नेकी करता है तो 10 नेकी, इसी तरह से 700 नेकी तक अल्लाह तबारक व तआला उसको एक नेकी का सवाब देता है। लेकिन रमजानुल मुबारक के रोजे का अल्लाह तबारक व तआला देखिए क्या नतीजा निकलता है और कितना बड़ा फजल करता है अपने बंदों पर। अल्लाह कहता है कि रोजा, चाहे रमजान के रोजे हो या नफली रोजे हो, अल्लाह कहता है कि रोजा मेरे लिए है, रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला दूंगा। क्या मतलब? नमाज अल्लाह के लिए नहीं, ज़कात अल्लाह के लिए नहीं है, सदका अल्लाह के लिए नहीं है, सारी इबादतें अल्लाह के लिए है। नमाज भी अल्लाह के लिए, ज़कात भी अल्लाह के लिए, सदका भी अल्लाह के लिए, तिलावत भी अल्लाह के लिए और रोजा भी अल्लाह के लिए। लेकिन अल्लाह ने इसकी फजीलत को उजागर किया कि देखो, रोजा मेरे लिए है, वह अना अजज़ी बिही, और मैं ही उसका बदला दूंगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को मुकर्रर किया हुआ है कि देखो फलां ने नमाज पढ़ ली है, इतना से इतना सवाब दे दिया गया। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला रमजान के और इसी तरह दिगर रोजे का अल्लाह तबारक व तआला खुद अजर देगा, सवाब देगा। क्यों? रमजान, खुसूसन रमजान का तज़किरा हो रहा है तो रोजा क्या है? हम दिगर इबादत करते हैं, नमाज पढ़ते हैं तो लोग हमें देख रहे होते हैं, हम हज के लिए जाते हैं तो लोग हमें देख रहे होते हैं, जानते हैं कि हम हज करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन रोजा ऐसा अमल है, ऐसी इबादत है कि वो अल्लाह तबारक व तआला और उस बंदे यानी रोजेदार के माबेन वो चीज होती है कि वो उसकी इबादत किस तरह अमानत के साथ कर रहे हैं। अगर कोई इंसान छुप करके पानी पी ले या खाना खा ले
तो कोई इंसान नहीं जान सकता। लेकिन जब रोजेदार रोजा रखता है तो शहवत से दूर होता है, हम स्त्री से दूर होता है, बीवी सामने होती है। लेकिन रब्बुल आलमीन ने रोजे में, अल्लाह तबारक व तआला ने रोजा की हालत में हमारे ऊपर वो चीज हराम कर दिया है तो बंदा रुका रहता है। इसी तरह से खाना मौजूद होता है, पानी मौजूद होता है, लेकिन फिर भी नहीं पीता है। क्यों? क्योंकि मैंने रोजा रखा है। वो ये सोचता है कि हमने रोजा रखा है और रोजा की हालत में ये चीजें हराम है, देखने वाला कोई नहीं है, जानने वाला कोई नहीं है, हम अकेले हैं, तने तनहा है। वो इंसान चाहे भूख की शिद्दत है, प्यास की शिद्दत है, गर्मी की शिद्दत है, फ्रिज में पानी रखा हुआ है, ठंडा पानी हाथ में है, लेकिन फिर भी नहीं पीता है, इस खौफ से कि अगर हम पिएंगे तो मेरा रोजा बातिल हो जाएगा और हम सवाब के हकदार नहीं होंगे, इस वजह से वो नहीं पीता है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि रोजा मेरे लिए है और रोजा का मैं अज्र देने वाला। और अल्लाह तबारक व तआला बड़ा फजल वाला है, इतना अज्र देगा, इतना अज्र देगा कि बंदे खुश होंगे, बंदे उस अज्र को पाकर के खुश होंगे। तो जरूरत इस बात की है कि हम अपने जहन के अंदर ये सोच लें कि रमजानुल मुबारक के महीने में हम जो रोजा रखेंगे मुकम्मल सवाब की उम्मीद के साथ अल्लाह तबारक व तआला के लिए रोजा रखेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला पिछले गुनाह को हमारे लिए माफ कर देगा। इसी तरह से जहां बहुत सारी चीजें हैं वहीं पर एक जो खास इनाम हमारे ऊपर हुआ करता है वो तरावी है। और तरावी के अंदर भी लोगों को चाहिए कि अपने जहन के अंदर पहले ये खाका बना ले कि हम तरावी में मुकम्मल तौर पर हाजिरी देंगे और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत मुकम्मल तौर पर अल्लाह तबारक व तआला के लिए इखलास और लिल्लाहियत के साथ अदा करेंगे। याद रखिए, इस तरावी को हल्का में मत लीजिए मेरे भाइयों, इसको नफिल समझ करके मत छोड़ दिया कीजिए, इसकी अहमियत को जानिए, इसकी फजीलत को जानिए। जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने यह खुशखबरी दी है कि जब रोजा रखता है तो अल्लाह तबारक व तआला पिछले गुनाह माफ कर देते हैं। वहीं पर यहां भी ये खुशखबरी मिली है कि जो इंसान तरावी कायम करता है, जो क़याम करता है, अल्लाह के नबी कहते हैं कि उनके भी पिछले गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। मन क़ाम रमज़ाना ईमाना वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। जो इंसान रमजानुल मुबारक के महीने में क़यामुल लैल का एहतमाम करता है, यानी तरावी अदा करता है, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही, उनके पिछले गुनाहों को माफ फरमा देता है। अल्लाह तबारक व तआला उनके पिछले गुनाहों को बख्श देता है। तो जरूरत इस बात की है कि अपने जहन के अंदर अभी ये सोच लीजिए और प्लानिंग कर लीजिए कि इंशाअल्लाह आइंदा रमजान में जो भी हुआ हो गया, इस बार हम सुस्ती नहीं करेंगे, इस बार हम काहिली नहीं करेंगे। अल्लाह तबारक व तआला ने एक जगह जहां बहुत सारी चीजों का तज़किरा किया, वहीं पर रोजा के भी तज़किरा किया। कहा इन्नल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात वल मुमिनीन वल मुमिनात। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा किया कि जो मुमिनीन हैं, मुस्लिमीन हैं, ईमान वाले हैं, जो सब्र करने वाले हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, जो खुशू व खुदू इख्तियार करने वाले हैं, चाहे मर्द हो या औरत हो, उसी में अल्लाह तबारक व तआला ने रोजा का भी तज़किरा किया और कहा वस्साइमीन वस्साइमात, कि रोजा रखने वाले मर्द और रोजा रखने वाली औरतों के ताल्लुक से अल्लाह ने ये फजीलत और ये खुशखबरी दिया। कहा अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। अल्लाह ने ये वादा किया है कि अल्लाह तबारक व तआला उनके गुनाहों को बख्श देगा, रोजेदार के गुनाहों को माफ कर देगा, वो अजरन अज़ीमा, और उसके लिए अजीम सवाब है, उसके लिए अजर अजीम है। तो जरूरत इस बात की है, इन चीजों को अपने जहन के अंदर बिठाइए। याद रखिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रमजान मुबारक के महीने में माहौल अता करता है और एक इंसान माहौल में ढल जाया करता है। और याद रखिए ये ऐसा महीना भी हुआ करता है कि भटके हुए भी इंसान राह रात पर गामगन हो जाता है, बेनमाजी भी नमाज शुरू कर देते हैं, जो कुरान से कोसों दूर रहता है वो भी कुरान की तिलावत करना शुरू कर देता है। यही वजह है कि अल्लाह तबारक व तआला ने रमजान के महीने में कुरान को नाजिल किया और हुदल लिन्नास कहा, रहनुमाई का दरिया कहा। तो रमजान भी हिदायत का दरिया और रहनुमाई का दरिया है। एक इंसान जो शराब पीता है, शराब को छोड़ देता है। एक इंसान जो जुआ खेलता है, रमजान और मुबारक के महीने में जुआ खेलना छोड़ देता है। एक इंसान जो गलत वीडियोस देखता है, रमजान आता है, इन चीजों को छोड़ देता है। तो जरूरत इस बात की है कि हम सिर्फ रमजान के लिए ना छोड़े, हम अपने जहन के अंदर ये चीज को बिठा लें कि इंशाअल्लाह आज से क्लोज करेंगे, आज से बंद करेंगे और आइंदा दिनों में भी इसी तरह जिंदगी गुजारेंगे। एक इंसान जब रमजान मुबारक का महीना पा करके बाद वाली जिंदगी भी उसी तरह गुजारता है और रब्बुल आलमीन के मुतीओ फरमाबरदार होता
ہوتا ہے، یقین جانیے رمضان کا جو حق تھا وہ پا لیا۔ ایک واقعہ سنیے کہ دیکھیے کہ رمضان کی کتنی فضیلت ہے اور ہماری زندگی کے اندر رمضان کتنی اہمیت کے حامل ہے۔ ایک صحابی رسول بیان فرماتے ہیں کہ دو شخص ایک ہی وقت میں اسلام قبول کرتے ہیں، ایک ہی وقت اسلام قبول کرتے ہیں۔ ایک انسان زیادہ عبادت گزار ہوتا ہے، اللہ کی زیادہ عبادت کرتا ہے، اور دوسرا جو ہوتا ہے ان سے کم عبادت کرتا ہے، وہ بھی زیادہ کرتا ہے لیکن ان سے کم کرتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان شہید ہو جاتا ہے، جو زیادہ عبادت کرتا ہے وہ شہید ہو جاتا ہے، اور جو کم عبادت کرتا ہے وہ ان کے 1 سال کے بعد انتقال کرتا ہے۔ صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جو دوسرا انسان ہے وہ پہلے جنت میں جاتا ہے۔ انہیں تعجب ہوتا ہے، صحابہ کرام کو یہ معاملہ سناتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک انسان جو وہ شہید ہے، یہ واقعہ تو صحیح ہے کہ جو شہید ہے وہ پہلے جنت میں نہیں جا رہا ہے، جبکہ شہید کا اتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے کہ بغیر حساب و کتاب کے وہ جنت جانے والے ہیں، تو وہ شہید ہوئے ہیں پھر بھی جنت بعد میں جا رہے ہیں، لیکن 1 سال کے بعد جن کو یوں ہی عام موت ہوئی ہے وہ 1 سال پہلے جنت میں جاتے ہیں۔ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ بیان فرماتے ہیں، یہ خواب سناتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کیا یہ جو دوسرا شخص پہلے جنت میں گیا ہے انہیں ان سے 1 سال زیادہ نہیں ملا؟ ان کی زندگی کے اندر ایک رمضان نہیں آیا، ان کی زندگی کے اندر اتنی نمازیں تھیں، انہوں نے اتنی نمازیں پڑھی، رمضان کے روزے رکھے، یہی وجہ ہے کہ وہ شہید ہونے کے باوجود اور ان کے 1 سال کے بعد یہ زندگی گزارے اور ان کی زندگی کے اندر رمضان آیا اور رمضان کے روزے رکھے، یہی وجہ ہے کہ یہ پہلے جنت میں گئے۔ آپ کو اس واقعہ سے رمضان کی اہمیت معلوم ہو گئی ہوگی اور اس کی فضیلت معلوم ہو گئی ہوگی کہ اس کی اتنی فضیلت ہے کہ ایک انسان اتنا بڑا مقام پر فائز ہوا کہ ان کو شہید کی موت نصیب ہوئی اور ان کو عام موت نصیب ہوئی، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے روزے اور نماز کی بدولت ان کو جنت میں دوسرا انسان کو پہلے داخل کیا۔ معلوم چلا کہ رمضان کی بڑی اہمیت ہے۔ آئیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام لوگوں کو رمضان المبارک کا مہینہ نصیب عطا فرما۔ اللہ